Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th. Dear students, our subject is Pakistan studies and we are studying chapter number 2, Pakistan and the foreign world. Our topic is Pakistan's relations with the great powers and this is 13th part of this chapter. And I am your teacher Nazish Noor. So let's start our today's topic. Dear students, now come up to page number 56 and we are starting our new topic which is Pakistan's relations with great power. Dear students, in this topic we will learn the relations of Pakistan with the United States of America, United Kingdom, European Union, Japan and Union of the Soviet Socialist Republic means USSR. I am going to read and later explain the passage to you. Please hold your pencils in your hands and note down the meanings. Right from beginning, Pakistan has endeavored कहते हैं कोशिश करना, to establish friendly ties with the great powers with the view to facilitating कहते हैं सहूलत देना, the growth of its own economic and military power with their cooperation. So Pakistan extended फैलाना या बढ़ाना, its hands of friendship to USA, China, Britain, Russia, European Union and Japan. Relations with China have already been discussed. पाकिस्तान की शुरू ही से ख्वाहिश थी कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेवार करे, चूँकि पाकिस्तान इक्तिसादी यानी इकनॉमिकली एंड दिफाई लिहाज से यानी मिलिट्री और डिफेंस के लिहाज से कमज़ोर था। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि दिफाई और मुआशी लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक से करीबी दोस्ताना ताल्लुकात रखे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अमरीका, चीन, ब्रितानिया, रूस, यूरोपीय यूनियन के ममालिक और जापान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाक चीन ताल्लुकात पहले बयान किए जा चुके हैं हमारे प्रीवियस लेसन में। Students, now come up to page number 57. We are going to start the relations of Pakistan with United States of America. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में किस किस्म के ताल्लुकात इस्टेब्लिश हुए हैं और पाकिस्तान में जो दो जंगें गुजरी हैं यानी वॉर ऑफ 1965 एंड 71, इसमें अमेरिका का क्या रोल था। And we will also learn the relations during revolution in Afghanistan. So I am going to read the passage. Pakistan's relations with the US means United States of America have witnessed कहते हैं मुशाहिदा करना, गवाह रहना, many ups and downs. Soon after gaining independence, Pakistan expressed its intentions कहते हैं इरादे of friendship with the United States and its western allies कहते हैं इत्तेहादियों को, for its own vested interest कहते हैं मुस्तकिल मफाद। पाकिस्तान first prime minister visited US in 1950s. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रहे हैं, इनमें काफ़ी ऊंच और नीच आ चुकी है। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका का दौरा 1950 में किया। Pakistan formally joined Central Treaty Organization (CENTO) and Southeast Asian Treaty Organization (SEATO). The two countries also signed a mutual defense pact in May 1954. Dear students, CENTO, the Central Treaty Organization, originally known as the Baghdad Pact or the Middle East Treaty Organization, was a military alliance of the Cold War. It was formed in 1955 by Iran, Iraq, Pakistan, Turkey and UK.
Later by USA individually joined it and it dissolved in 1979. The treaty was signed to maintain the peace in Middle East by Baghdad. इस ट्रीटी को यानी इस मुआहदे को इसलिए साइन किया गया था कि मिडल ईस्ट में जो है अमन कायम किया जा सके. एंड ट्रीटी ऑफ सेंटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन were considered necessary in the post-war period to protect member countries from communist aggression and conspiracy. It was signed in 1954 to increase security and stability in the region. So students, सेंटो बनाया गया था ताकि मिडल ईस्ट में अमन यानी कि पीस कायम किया जाए और सीटो बनाया गया था ताकि दिफाई लिहाज से मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प की जा सके. यानी कि अगर मेंबर कंट्रीज़ पर कोई फॉरेन एग्रेशन यानी कि बाहरी हमला होता है तो मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया हुआ है वो तमाम मेंबर कंट्रीज़ जिस कंट्री पर एग्रेशन किया गया है उसकी हेल्प करेंगे डिफेंस में. Dear students, now come up to next paragraph. In Pakistan's 1965 war with India, the US did not provide Pakistan any help. Provide कहते हैं मुहैया करना, फराहम करना. Indeed, यकीनन, it imposed कहते हैं नाफिज करना. an arms embargo official ban को कहते हैं यानी पाबंदी on both the warring sides. warring sides कहते हैं यानी मुखालिफिन को जो जंग लड़ रहे थे. Pakistan's war efforts were seriously undermined by the embargo. Undermined कहते हैं डैमेज होना, कमज़ोर होना. 1965 में पाक भारत जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं की और पाकिस्तान जो असलहा यानी आर्म्स अमेरिका से ख़रीदता था उस पर भी पाबंदी लगा दी. अमेरिका ने जब पाकिस्तान पर आर्म्स प्रोवाइड करने पर पाबंदी लगाई तो इससे पाकिस्तान को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा. Also in the 1971 war, the US did not provide any substantial कहते हैं काफ़ी support to Pakistan. Consequently कहते हैं as a result, नतीजतन पाकिस्तान foreign policy began to tilt कहते हैं झुकाव आना towards non-alignment. non-alignment कहते हैं गैर जानिबदारी को, alignment कहते हैं combination को. And the country left both SEATO and CENTO. 1971 की पाक भारत जंग में भी अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई अमली मदद नहीं की, लिहाजा पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी से फॉरेन पॉलिसी बनाई. इट मीन्स कि उसने सीटो और सेंटो दोनों से अलहदगी इख्तियार कर ली. डियर स्टूडेंट्स, दोनों पैक्ट में ये साइन किया गया था, दोनों अग्रीमेंट्स में, कि अगर किसी एक मुल्क पे यानी जो कि मेंबर कंट्री है जिन्होंने ये अग्रीमेंट साइन की हैं सीटो एंड सेंटो को, अगर उनमें से किसी मेंबर कंट्री पर फॉरेन एग्रेशन होता है यानी बाहरी हमला होता है तो बाकी मेंबर कंट्रीज़ उसकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली भी और डिफेंस के तौर पर भी यानी मिलिट्री लिहाज से भी उसकी हेल्प करेंगे. लेकिन अमेरिका इन दोनों ट्रीटीज़ के अगेंस्ट गया क्योंकि इन दोनों ट्रीटीज़ में था कि वो मेंबर स्टेट पर अगर फॉरेन एग्रेशन होता है, बाहरी कोई भी हमला, तो सारी मेंबर कंट्रीज़ मिलकर उसको डिफेंड करेंगी. लेकिन अमेरिका इसके ख़िलाफ़ गया, इसीलिए पाकिस्तान ने इन दोनों ट्रीटीज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली. इन 1979 द फॉलोइंग ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को, एंड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन अफ़गानिस्तान. डियर स्टूडेंट्स, ये वो टाइम पीरियड है 1979 का जब ईरान और अफ़गानिस्तान में इस्लामाइजेशन आ गई थी. ईरान में आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी की हुकूमत आई और अफ़गानिस्तान में तालिबान की.
The relations between Pakistan and US took a new turn. Dear students, 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया और अफगानिस्तान में यानी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, जब तालिबान सोवियत यूनियन के एग्रेशन यानी जो उन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया था उसके खिलाफ खड़े हुए, तो पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशंस ने एक नया रुख इख्तियार किया. द टू कंट्रीज यानी कि अमेरिका एंड पाकिस्तान entered into a phase of deep collaboration कहते हैं ताउन को in their support of the Afghanistan in their fight against the Soviet backed government in Kabul. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फर्स्ट चैप्टर में सोवियत बैक गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि उस टाइम पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स उठाए थे उनके लिए और अफगानिस्तान की कंडीशन क्या थी. जब पाकिस्तान ने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की है सोवियत के अगेंस्ट. दोनों ममालिक यानी अमेरिका और पाकिस्तान ने अपने अपने इंटरेस्ट यानी मफादात की खातिर सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में मुदाखलत के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया. बट आफ्टर द विड्रॉल कहते हैं वापसी को ऑफ सोवियत ट्रूप्स फौजें फ्रॉम अफगानिस्तान, यूएस इंटरेस्ट इन द रीजन waned and so did the US military and economic assistance to Pakistan. Waned कहते हैं डिक्लाइन, ख़त्म होना, जवाल होना. असिस्टेंस कहते हैं मदद को. जब सोवियत ट्रूप्स यानी सोवियत की अफवाज अफगानिस्तान से निकल गई तो इस खित्ते में यानी कि पाकिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी कम हो गई और पाकिस्तान को दी जाने वाली मुआशी और दिफाई इमदाद यानी असिस्टेंस में खासी कमी कर दी गई. फॉलोइंग द न्यूक्लियर डेटोनेशन. न्यूक्लियर डेटोनेशन कहते हैं एटमी धमाके बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1998. इंडिया और पाकिस्तान ने जब 1998 में एटमी धमाके किए तो द यूएस इम्पोज कहते हैं नाफिज करना, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मुआशी पाबंदियाँ ऑन बोथ द कंट्रीज़ यानी कि इंडिया और पाकिस्तान पर यूएस ने मुआशी पाबंदियाँ लगा दी. आफ्टर द इवेंट्स ऑफ September 11, 2001 द यूएस डिक्लेयर्ड कहते हैं ऐलान करना द वॉर ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म कहते हैं दहशत गर्दी. एंड invaded Afghanistan. Relations between Pakistan and the US took a new turn again. Dear students, 11 September 2001 ये वो टाइम पीरियड है जिसके बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया था और अमेरिका ने उसका ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान को ठहराया. उसके रहते अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर अटैक कर दिया. 11 सितंबर 2001 के वाक़ये के बाद जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ किया तो अमेरिका को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ताउन की ज़रूरत पड़ गई. Because Pakistan's support to this war on terror was and continued to be indispensable for US. Thus the two countries have been drawn together into an alliance. Alliance कहते हैं इत्तेहाद को. Indispensable नागुज़ीर यानी कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में वॉर ऑफ टेरर या वॉर ऑन टेररिज्म बग़ैर पाकिस्तान के मदद के नहीं कर सकता था. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान अमेरिका से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बॉर्डर्स शेयर करते हैं, तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए अमेरिका ने दोबारा से पाकिस्तान को बहुत असिस्टेंस भी प्रोवाइड की, हेल्प प्रोवाइड करना शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान अमेरिका की हेल्प करता जाए अफ़गानिस्तान में द वॉर ऑफ टेररिज्म के ख़िलाफ़. तो इस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना अलायंस बना दिया, मतलब इत्तेहादी बना दिया था वॉर ऑन टेरर या वॉर ऑन टेररिज्म में. Now US has repeatedly declared that she wants permanent relations with Pakistan, but the fact यानी कि हकीकत is that in international relations there is no
permanent friend or foe. The real thing is the national interest. foe कहते हैं enemy को, दुश्मन को. national interest कौमी मफाद. अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर ताल्लुकात कायम रखेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे अहम चीज़ कौमी मफादात यानी कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं. ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और ना ही दुश्मन. इस बात का मतलब ये है कि अगर दो ममालिक आपस में दुश्मन भी हैं, लेकिन अगर उनके इंटरेस्ट कॉमन हो और उन्हें एक दूसरे से मतलब यानी मफाद हासिल हो, तो वो इसके लिए अपनी दुश्मनी को पीछे करके दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो उनसे अपने इंटरेस्ट यानी कि मफादात हासिल कर सकें. So students, here we have completed our topic in which we have studied the relations between Pakistan and America. Dear students, we had learned the relations between Pakistan and India after the independence of Pakistan and the US role in the war of 1965-71 and the US role in 1979 during the revolution of Iran and Afghanistan. So this was the sum of your topic. We will continue the next topic in our next class. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.